Dear students, very good afternoon to everyone. So today I am going to start a very new topic that is called differential equation. Okay, already we have completed, that is a differential calculus as well as integral calculus, and now we are in the last part of calculus, and that is called a differential equation. From this equation in board examinations, 8 marks question asked. In your state board, 8 marks question will asked, and this is of there are two question 4 plus 4. Sometimes a 1 mark question also asked, and sometimes additional 1 mark may be asked. Okay, so this is very important chapter, and here it is the mixing of differential calculus and integral calculus. In differential equation, what we will do, we will mixing of differential calculus and integral calculus. Whatever with the formula we have learned, this formula we are going to apply here. There is nothing new, just we know what is differential equation and some other basic concept regarding this. What are the types of differential equation, and we will solve the equation. Okay, ठीक है. तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट भी है, और ये जो मैंने बोर्ड में कुछ इक्वेशन लिखा है इन्वॉल्विंग व्हाट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ऑर्डर 1, and this is also a differential coefficient of order to second order. Okay, so whenever in any equation where y is depending on what, y is a dependent variable and x is the independent variable, so that y is a function of x. Okay, so y is a function of x, then you can get dy by dx. आपको क्या मिलेगा, ये सारी मिल सकता है, dy by dx d2y upon dx2. So ये मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. ओके, सो व्हेनेवर एनी इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0, सो इट इज एन इक्वेशन और इक्वलिटी इज देयर इक्वेशन है, तो ये सारी इक्वेशन में अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व रहेगा तो इस टाइप का इक्वेशन का नाम क्या है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस कॉल्ड व्हाट, डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन का तो बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है, whenever the y is a dependent variable, y is a function of x, y is a depending on variable x, then differential coefficient of y with respect to x is involved in any equations, first order or second order or whatever be. तो ये सारी इक्वेशन का नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, so this type of equation is called what, differential equation. Okay, now we are our interest is what is the degree of a differential equation, what is the order of a differential equation. Here you see order of it is a first order. ये differential जो coefficient है इसका order क्या है, 1 है, इसका order क्या है, this is 2, तो order कितना है इसका, 2 है. This is a second order, this is a first order differential coefficient. Okay, now order of a differential equation, order of a differential equation. What is the order of a differential equation? For suppose that x into dy by dx plus y equal to what, 0. This is a differential equation. Here highest differential coefficient is what, it is only dy by dx. So order of a differential equation means order of the highest derivative present in the equation, order of the highest derivative present in the equation. इस equation में देखो what is the derivative present, here derivative present is what, dy by dx. okay, it is the highest, इससे बड़ा और कुछ नहीं है, dy by dx से ऊपर तो कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ dy by dx ही है. तो इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर ऑफ दिस इज व्हाट, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज व्हाट, 1. हाईएस्ट ऑर्डर जो है उसका ऑर्डर कितना है, 1 है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा. डेफिनेशन बता रहा है, डेफिनेशन कह रहा है इफ़ इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज़ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव dy by dx है, इसका ऑर्डर 1 है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा. ठीक है. Next, suppose I consider x square into suppose d2y upon dx2 plus dy by dx whole square plus y. Suppose that this is a differential equation. Okay, so in this differential equation, what is the highest order derivative?
दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें पावर होगा कोई मतलब नहीं, पावर से मतलब नहीं हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 1 है, इसका ऑर्डर कितना है 2 है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। is highest order derivative, and order of this highest order derivative is what 2, and therefore this differential equation order कितना होगा, इसका order कितना होगा 2 भी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, order 2 होगा। Clear? I hope you understand. So in this way you can find the order of the differential equation. Suppose I say y triple dash plus y double dash x into y double dash plus sin x इज इक्वल टू वाट 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें y ट्रिपल डैश मीन्स वाट d3y अपॉन dx2। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, y3 है, इसका ऑर्डर कितना है 3। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा 3 होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको समझना है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द हाईएस्ट इज़ द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। Order of a differential equation is the order of the highest derivative present in the equation. इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा उसका ऑर्डर जितना होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, ये वेरी सिंपल डेफिनेशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें समझना थोड़ा ज़रूरी है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, इज द पावर ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। हालियर ऑर्डर में क्या था, इस डिग्री में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिस इज डिग्री में ये इंपॉर्टेंट है, क्या है हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसका पावर क्या है वो चेक करना है। एंड ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर में है ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ द व्हाट हाईएस्ट डेरिवेटिव। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर जितना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इतना होगा। एंड डिग्री में क्या है, पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। लेकिन एक कंडीशन है, व्हेन पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, व्हेन द इक्वेशन is freed from radicals. It is freed from radical sign. Freed from radical sign. Radical sign में एक इक्वेशन देता हो, आपको समझ में आएगी। सपोज दैट 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल टू द पावर हाफ और रूट ओवर कर सकते इज इक्वल टू वाट एक्स, ओके, इज इक्वल टू वाट एक्स और इक्वल से वाई। सो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर, ये रूट ओवर हो या ना हो कुछ मतलब नहीं, ऑर्डर क्या है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना, ये क्या है हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो सपोज इट इज़ क्यूब, ओके, नो इशू। तो इट इज़ व्हाट हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब और उसका स्क्वायर रूट इक्वल टू व्हाट वाई, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, उसमें पावर हो या ना हो कोई मतलब नहीं, तो उसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज सिंपल, ऑर्डर इज व्हाट वन ना। डिग्री में प्रॉब्लम है कि है रूट ओवर है, ये रूट ओवर को क्या कहते हैं, एक रेडिकल साइन, इट इज़ ए रेडिकल साइन, इट इज़ ए रेडिकल साइन, that radical sign should remove first. After removing, when the indicator freed from, very important, freed from इक्वेशन में क्या होना चाहिए, रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। रेडिकल साइन अगर होगा तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करने के बाद डिग्री निकालेंगे। तो रिमूव कैसे करेंगे, ये क्या होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब होल टू द पावर वाट हाफ इक्वल टू वाट वाई, है कि नहीं, इक्वल टू वाट वाई। नाउ हमें क्या करना है, ये हाफ ख़त्म करना है तो स्क्वायरिंग करें,
1 by dy by dx whole cube equal to what? That is equal to what? Y square. So ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है. इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यू सी इफ़ यू एक्सपांड इट, इसको अगर एक्सपांड करें तो क्या होगा? 1 प्लस फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल हो गया, जो भी हो. इसमें अगर एक्सपांड करें प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला एक्सपांड करें तो डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब होगा, एक टर्म आएगी डी वाई क्यूब प्लस बी क्यूब डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब आएगी, है कि बाकी टर्म में भी पावर आएगा, लेकिन हाईएस्ट पावर कितना होगा? ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें डी टू वाई अपन डी एक्स टू नहीं है, सेकेंड ऑर्डर भी नहीं है, थर्ड ऑर्डर भी नहीं है, ये सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स प्रेजेंट है. तो डी वाई बाई डी एक्स इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन दिस केस. और उसके ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है. तो हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द डिग्री. डिग्री इज व्हाट? 3. सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना होगा? 3 होगा. डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव. ये हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है उसका पावर कितना है? हाईएस्ट पावर. इसमें अगर डी वाई बाई डी एक्स 2 बार आ जाए, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर भी आ जाए, तो आप हाईएस्ट वाला लेंगे. तो डी वाई बाई डी एक्स होल उसका क्या है? डिग्री कितना होगा? 3 होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन है. सपोज दैट देन व्हाट इज द वाई डबल डैश मीन्स व्हाट? डी टू वाई लिख दो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू. ओके, ये इक्वेशन है. इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? कैसे निकालेंगे? डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव. इसमें भी एक डेरिवेटिव है, इसमें एक डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है, उसका पावर कितना है? पावर इज व्हाट? 1. एंड देयरफॉर डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? डिग्री इज व्हाट? 1. बट सिंस इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? इसका ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव 2. सो उसका इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगी? ऑर्डर विल बी व्हाट? 2. डिग्री इज 1, ऑर्डर विल बी व्हाट? डिग्री मीन्स पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव व्हेन द इक्वेशन इज फ्रीड फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस. अनदर इक्वेशन ले जाए. सपोज दैट वाई डैश प्लस x into y double dash y dash plus x into y dash plus suppose that sin y dash plus y equal to 0. ऐसा है इक्वेशन. d2y upon dx2 plus sin dy by dx plus y equal to 0. This is a differential equation. So in such type of differential, what is the order क्या है? ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? d2y अपॉन d2. सो उसका ऑर्डर कितना है? 2 है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 2 हो गया. बट इन सच केसेस व्हाट हैपन? डिग्री इज व्हाट? अनडिफाइंड. डिग्री इज अनडिफाइंड. सो दिस एक्चुअली कॉल ए रेडिकल साइन. दिस एक्चुअली कॉल ए रेडिकल साइन. साइन के अंदर अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, साइन हो, कॉस हो या रूट ओवर के अंदर हो, तो ये सारी चीज़ होगा तो क्या होगा? डिग्री डिफाइन नहीं होगा. इन मीन से ये एक इक्वेशन ऐसा है, दिस इज ए नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन व्हाट? वाई डैश. नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वाई डैश. डी वाई बाई डी एक्स का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है. साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का साइन ऑफ दिस, ये जो होगा ये एक रेडिकल साइन है, इसीलिए उसका क्या, इसको रिमूव नहीं कर सकते आप. जैसे रूट ओवर को हमने स्क्वायर करके रिमूव कर लिया, उसको तो रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए उसका डिग्री क्या है? डिफाइन नहीं है. आप देखेंगे ऐसा अगर इक्वेशन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? डिग्री इज व्हाट? अनडिफाइंड. डिग्री व्हाट? अनडिफाइंड, बिकॉज इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, इट इज अनडिफाइंड. याद रखना, इट इज़ ए रेडिकल साइन. ये रेडिकल साइन हम रिमूव नहीं कर सकते, याद रखना, ये और बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई होप डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, समझ में आ गया. ऑर्डर मीन्स ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव एंड डिग्री मीन्स पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव व्हेन द इक्वेशन इज फ्रीड फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस. पावर जैसे फ्रैक्शन मीन्स व्हाट? डेरिवेटिव के ऊपर पावर जो है वो फ्रैक्शनल नंबर हो जाए, या रूट ओवर स्क्वायर रूट आ जाए, या ये साइन वगैरह कॉस वगैरह आ जाए, साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई अपन डी एक्स टू ऐसा हो जाए, तो आप क्या होगा? ये पार्टिकुलर इक्वेशन का डिग्री क्या होगा? अनडिफाइन हो जाएगी इफ़ वी डू नॉट रिमूव.
ये रेडिकल साइन अगर रिमूव कर दिया तो फिर डिफाइन हो जाएगी, रिमूव नहीं कर पाया तो क्या होगा, अल्टीमेटली डिग्री विल नॉट डिफाइन. So there are few questions in your text. Are there? What is the degree and order of a differential equation? So please go through this and try to find the degree and order of the differential equation. I am not going to solve this equation because sometimes one mark question asks a equation will be given and tell you what is the degree and what is the that is called order of the differential equation. There are few examples are there, few exercises are there, and go to this and try to solve it. So here I am going to start with the formation of differential equation. In differential equation में two चीज़ है, एक चीज़ है differential equation formation करना, formation of differential equation, ठीक है, and another is what, solution of differential equation, solution of differential equation. इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो चीज़ करेंगे. एक चीज़ क्या करेंगे, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, और एक चीज़ क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और सोल्यूशन करेंगे, ठीक है. तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस यूज़ करेंगे, एंड ऑन सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल यूज़ व्हाट, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, विल यूज़ व्हाट, इंटीग्रल कैलकुलस. दैट मीन्स व्हाट हैपन, that is differential equation is involving both differential calculus as well as integral calculus, ठीक है. So differential equation में दो चीज़ याद रखो, फॉर्मेशन एक चीज़ है, सॉल्यूशन एक चीज़ है. जब एक डिफरेंशियल इक्वेशन को आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यू कैन फॉर्म सपोज y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इन टर्म्स ऑफ सम x दिया जाएगा, ठीक है. वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. y इज़ ए फंक्शन ऑफ x दिया जाएगा, वहाँ से आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, सम डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ 0 इक्वल टू 0 रहेगा, वहाँ से आप क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स, एक कार्व आप क्या करेंगे, सोल्यूशन. ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और सोल्यूशन ऐसा मिलेगी, y इन टर्म्स ऑफ व्हाट, x, और y इन टर्म्स ऑफ x दिया जाएगा, वहाँ से आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं. तो इफ़ इट इज़ गिवन एंड आपको क्वेश्चन में कहे फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको उसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा. इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस मीन डेरिवेटिव करेंगे, इसके बाद वो मिलेगी. और आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और आपको कहे फाइंड द सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन निकाले और सोल्यूशन इस फॉर्म में आएगा, तो आप क्या करेंगे, उसको इंटीग्रल कैलकुलस यूज़ करके बाकी चीज़ करेंगे. समझ में आ रहा है, वेरी इजी. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले, सपोज दैट y इक्वल टू व्हाट, mx. ये है क्या है, ए लाइन है. व्हाट टाइप ऑफ लाइन, इट रिप्रेजेंटिंग मेनी लाइन्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m, what happen, it will represent different line, or you can say it represent a family of line. It is a family of lines. Why family? Because it representing many lines. सब लाइन का कलेक्शन एक साथ करें तो एक फैमिली बन सकता है कि नहीं, तो इसीलिए आई एम टेलिंग इट इज़ ए फैमिली ऑफ लाइन्स. उसको अगर डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू व्हाट, साइड में क्या होगा, mx का डेरिवेटिव क्या है, 1 होगा, तो m इंटू 1 हो जाएगी नहीं. तो इसमें अगर पुट करेंगे m का वैल्यू, इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ m, व्हाट इज, यू गेट m इक्वल टू dy/dx. सो इस इक्वेशन में m का वैल्यू पुट करते हो, y इक्वल टू व्हाट, m dy/dx into what, x, okay, and from here you can write x into dy/dx minus y equal to 0. ये एक equation हो गया, this is an equation, okay, this is an equation, and we know that whenever in an equation if differential coefficient is involved, then such type of equation are called what, differential equation. That means y equal to mx is a line, this line is representing with this differential equation, okay, is connected with this differential equation, okay. और you can reversely can tell, ये जो equation है
ये इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे तो आपको y इक्वल टू एम एक्स मिलेगा। मैंने कहा था ना डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो आप क्या मिलेगी, y इक्वल टू एफ एक्स टाइप मिलेगी। कैन आई से y इक्वल टू एम एक्स इज ए फंक्शन ऑफ x? कह सकता हो कि नहीं? वी कैन से इट इज़ ए फंक्शन ऑफ x। लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? सो y इक्वल टू एम एक्स इज ए लाइन, इट इज़ ए फैमिली ऑफ लाइन which is connected with this differential equation, and if you solve this differential equation, whenever I am going to solve, I'll show you, that is when you solve this differential equation आपको ये मिलेगी। समझ में आ रहा है? means what, this particular family of line is the primitive of this differential equation. Primitive means solution. solution का और एक नाम है primitive. so this particular line of equation is the solution of this particular solution of what, this particular differential equation, or you can say primitives. Okay, very interesting result is that this m is what, a constant. M is a what, constant quantity, like 1 2 3. What type of constant? M is an arbitrary constant. It is an arbitrary constant. M is what, an arbitrary constant. M is an arbitrary constant. Why? Because m can take any values. It is not fixed constant. It is an arbitrary constant. When in a curve, you can say it is a curve. Y equal to mx means what? Y is a function of x, so it is a curve. So there is y equal to mx, where m is an arbitrary constant. So this particular arbitrary constant is in this curve में arbitrary constant कितना है? 1 है, because there is an m, there is a one constant which is arbitrary, no doubt, only one constant m. when the constant number of constant in a particular curve is 1, उसके साथ जुड़ा हुआ जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर कितना होगा? उसका ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। if constant is number of arbitrary constant is 1, then order of differential equation is also 1. very important. ठीक है, ये जो डिफरेंशियल, ये जो y इक्वल टू एफ एक्स ए कर्व है, वेयर m इज़ ए कांस्टेंट इन दिस कर्व, ओनली वन कांस्टेंट, और उसके साथ जुड़ा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? यही है, और उसका ऑर्डर कितना है? 1 है। ठीक है, इफ सपोज देयर आर टू डिफरेंशियल टू कॉन्स्ट, सपोज इफ आई कंसीडर y इक्वल टू व्हाट, c1x प्लस c2x स्क्वायर, ऐसा एक कर्व है, इट इज़ ऑल्सो ए कर्व। उसके साथ जुड़ा हुआ जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका क्या होगा? ऑर्डर कितना होगा? याद रखें, ऑर्डर इज़ व्हाट, 2 होगा। ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। डिग्री कितना होगा हमें पता नहीं, लेकिन ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। याद रखें, हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट? दिस c1 एंड c2 आर आर्बिट्री कांस्टेंट। वी डू नॉट नो अबाउट c1 एंड c2 बिकॉज c1 इज़ व्हाट, c1 is what, arbitrary. It may be 1 2 anything. Okay, it may be 1 2 anything. If suppose c1 equal to what, 2 and c2 equal to what, 3, then arbitrary constant becomes what, c1 and c2 what are fixed. Arbitrary constant are what, fixed हो गया। So ये arbitrary constant नहीं है, इसमें ये fixed constant है, और ये क्या है? arbitrary constant है। याद रखना, बहुत important है। Clear? So whenever there are two arbitrary constant in a curve, उसके साथ जुड़ा हुआ differential equation का order कितना होगा? 2 होगा। So let us going to solve few questions, then your conception will be more clear and you will get an idea. Okay. Question is, form the differential equation of the family of parabolas. Family of parabolas, y square is equal to 4x, where a is positive. Suppose a may be negative, no problem. You can say condition देने का कोई ज़रूरत नहीं. So y square is equal to 4x. What is a? A is a arbitrary constant. For different value of a, you will get different parabola. कैसे parabola? फैमिली क्यों है? क्योंकि parabola का शेप कैसा होगा? ऐसा होगा. So depending on a, you will get different parabola. Like this is a parabola, or like this is a parabola. Same pattern of parabola. Okay.
you will get many parabolas. So all the collection of parabolas are represented by this equation. That's why it is called family of parabolas. What is a? A is an arbitrary constant. That's why we are getting different. A का वैल्यू अगर 1 हो तो एक पैराबोला होगा. If a equal to half, it will be another parabola. If a equal to suppose root 3, it will be another parabola. If a equal to suppose 5, it will be another parabola. So how many parabolas? Infinite number of parabolas, and all the collection of parabolas are called family of parabolas. And what is the differential equation representing this particular family of parabolas? So given parabola is y square is equal to what? 4x. So differentiate करें, differentiating विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि जब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे कार्ब से तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशियल कैलकुलस यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. मैं इसको नहीं समझाऊंगा. 4 इज़ कॉन्स्टेंट, a इज़ कॉन्स्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज़ व्हाट? 1. तो वहाँ से आप a निकालो. व्हाट इज़ a? a इक्वल टू व्हाट? इसमें आएगा तो क्या होगा? y बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, y बाई 2 इंटू डी वाई डी एक्स. अभी क्या करना है? ये आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करें, उस वहाँ से आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू इस पर पुट करें तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी. आपका क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन में? क्या है, आप आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करना है? ख़त्म करना है. आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है. व्हेन यू रिमूव आर्बिट्री कांस्टेंट, तब जब इक्वेशन एक बनेगी, ये इक्वेशन ही डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है. सो पुटिंग y इक्वल टू, सो दिस इज़ 1 इम्प्लाइज y स्क्वायर equal to 4 into this is y by 2 into what? dy by dx. ठीक है, into x तो है, x है. तो इसके बाद क्या होगा? 2 कैंसिल होगा. y स्क्वायर इज इक्वल टू xy into dy by dx. I hope you are understanding. Okay, yes, xy into dy by dx, which is the required differential equation. ये है differential equation है. आप लोगों को क्या लग रहा होगा? y तो है, y कैंसिल हो जाएगी. यू डू नॉट कैंसिल इट. ये आप कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज x एंड y क्या है? कोई भी कार्ब हो, y इक्वल टू एफ एक्स, x एंड y इज रिप्रेजेंटिंग ए पॉइंट ऑन द कार्ब, रिप्रेजेंटिंग ए पॉइंट ऑन द कार्ब. पॉइंट के कार्ब के ऊपर पॉइंट होती है. तो ये पॉइंट में अगर y 0 हो जाए, 0 कोऑर्डिनेट हो, तो आप डिवाइड करेंगे. y से मतलब है आप 0 से डिवाइड कर रहे हो. आप क्या कर रहे हो? 0 से डिवाइड कर. इफ़ y इक्वल टू 0, देन यू आर डिवाइडिंग विथ 0 एंड यू कैनॉट डिवाइड एनीथिंग डिवाइड बाई 0. 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए अनडिवाइड हो जाएगी. सो यू कैनॉट कैंसल y. इफ़ यू डू नॉट नो y इज़ व्हाट इज़ y. y के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं. ये भी 0 हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, इसीलिए ऐसे रहेगा. तो आप उसको लिख सकते हो एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. From the differential equation of the family of carbs by removing arbitrary constants by arbitrary constants a and b. आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स बाय रिमूविंग व्हाट? आर्बिट्री कांस्टेंट. ओके,
तो ये फैमिली ऑफ कार्ब क्या है, इक्वेशन ले ले। नंबर 1, सपोज दैट y इक्वल टू a इंटू e टू द पावर 3x प्लस b इंटू e टू द पावर -2x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आप लोगों को ये मिला था, ऐसा इक्वेशन दिया जाता है, वहाँ से आप लोगों को प्रूफ करना पड़ता है, इस टाइप का इक्वेशन है। तो ये पर्टिकुलर कार्ब जो है उसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आएगी, ऑर्डर 2 आएगी। ऑर्डर 2 आना मतलब क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर कब आएगी, तो जब आप 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, वी विल डेरिवेटिव दिस वंस एंड अगेन वी डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होगा व्हेन a एंड b आर व्हाट, a एंड b आर व्हाट कैन बी रिमूव। a एंड b को रिमूव करेंगे तब जाके डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होगा। जैसे मैंने जो अर्लियर इक्वेशन में पैराबोला में क्या a जो कांस्टेंट a है उसको रिमूव किया, या y इक्वल टू mx जो है वहाँ में m को रिमूव किया। तो आप लोगों को यहाँ में 2 कांस्टेंट है, दोनों को रिमूव करना पड़ेगा। व्हेन एक्सपोनेंशियल e टू द पावर 3x एंड e टू द पावर -2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा, तो हमें एक टेक्निक है, तो ये टेक्निक को फॉलो करें। तो कांस्टेंट कैसे रिमूव करें, कांस्टेंट को अगर कांस्टेंट अलोन हो, सपोज इन ए फंक्शन कांस्टेंट आर अलोन, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ddx ऑफ b इक्वल टू व्हाट, 0 हो जाएगी। सपोज b इज़ ए कांस्टेंट व्हिच इज़ अलोन, सो ddx ऑफ b इक्वल टू व्हाट, 0, तो कांस्टेंट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ y इक्वल टू x प्लस c, तो उसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 1, वो कांस्टेंट क्या होगा, 0 हो गया कि नहीं। अभी कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये जो y इक्वल टू एक्स प्लस सी है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, 1, कांस्टेंट खत्म हो गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो जब तक आप कांस्टेंट को रिमूव नहीं कर पाएंगे तब तक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कोई भी कांस्टेंट हो, 1 कांस्टेंट और 2 कांस्टेंट और 3 कांस्टेंट, व्हाट यू विल डू, यू हैव टू रिमूव द कांस्टेंट। ओके, आपको कांस्टेंट को रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा इसमें, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर डेरिवेटिव करेंगे, जैसे ddx ऑफ e टू द पावर mx क्या है, m इंटू e टू द पावर mx, तो ये फंक्शन जो e टू द पावर mx है वो चेंज नहीं होता, वो बार बार रह जाएगी। फिर डेरिवेटिव करेंगे तो फिर e टू द पावर mx रह जाएगी, तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। इसीलिए ये कांस्टेंट को हम रिमूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, y इंटू e टू द पावर ट्वाइस x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड में। a इंटू वाट, e टू द पावर 5x होगा, और इसमें अगर मल्टीप्लाई करूँ e टू द पावर ट्वाइस x से, तो ये दोनों मिलके क्या होगा, e टू द पावर -2x इंटू द पावर 2x क्या हो जाएगी, e टू द पावर -2x प्लस 2x, दोनों 0 होगा, इज इक्वल टू वाट, e टू द पावर 0 होगा इक्वल टू वाट 1 होगा, ठीक है। सो ये क्या होगा, b होगा, हो गया, ये तो बन गया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, 1 हो रहा है कि नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, x। विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में ddx, इसका डेरिवेटिव करें y इंटू ddx ऑफ e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 2x इंटू ddx ऑफ y मीन्स व्हाट, dy बाई dx। ओके, एंड ये क्या होगा, इसमें डेरिवेटिव करें, ये तो कांस्टेंट है, व्हाट इज द डेरिवेटिव, e टू द पावर 5x, 5 इंटू e टू द पावर 5x, एंड डेरिवेटिव ऑफ b इज़ व्हाट, 0। तो एक कांस्टेंट को हमने ख़त्म कर दिया, क्या है, 1 कांस्टेंट इज फिनिश। Now what is the derivative of this 2y into e to the power 2x and e to the power 2x, and what is dy by dx, it can be written as what, y1, and it is what, 5a into e to the power 5x। okay, तो हमें क्या हुआ, एक कांस्टेंट को हमने ख़त्म कर दिया। हमारा दूसरा काम क्या है, फिर सेकंड कांस्टेंट को ख़त्म करना है। ये कांस्टेंट क्या है, a है। क्या करें, अगर e टू द पावर 5x क्या करें, उसमें रिमूव कर दे, तो हमें राइट हैंड साइड खाली 5a हो जाएगी। राइट हैंड साइड बिकम्स व्हाट, ओनली 5a, एंड डेरिवेटिव ऑफ 5a इज व्हाट, 5 कांस्टेंट, a कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0, तो कांस्टेंट क्या होगा, रिमूव हो जाएगी। इसीलिए क्या करेंगे, e टू द पावर 5x से डिवाइड कर देंगे। टेक्निक को समझने की कोशिश करो, ठीक है। व्हेनेवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज देयर, यू हैव टू थिंक लाइक दैट। प्रॉब्लम ज़्यादा करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है, टू इंटू वाई इंटू e टू द पावर ट्वाइस x तो कॉमन ले सकते हो, तो
तो e टू द पावर ट्वाइस एक्स, तो अंदर में क्या हो रहा है ट्वाइस वाई प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई e टू द पावर 5x इक्वल टू 5a, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई e टू द पावर 5x। ओके, तो उसमें क्या होगा, ये e टू द पावर ट्वाइस एक्स बाई e टू द पावर 5x क्या होगा, e टू द पावर माइनस 3x इंटू 2y प्लस वाई वन इक्वल टू व्हाट 5a। तो उसको फिर डेरिवेटिव करें, अगेन डेरिवेटिव। ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो उसमें u इंटू बी, दिस इज u, दिस इज b, e टू द पावर माइनस 3x इंटू डी डी एक्स ऑफ 2y प्लस वाई वन प्लस 2y इन प्लस वाई वन इंटू डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस 3x, एंड यू सी दिस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अभी देखो ये जो रिजल्ट बन गया है उसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है। हमने कैसे टेक्निकली ये सारी चीज़ को कांस्टेंट को हटाया है, ये जो प्रोसीड्यूर मैंने किया है उसको फॉलो कीजिए, उसको उस टेक्निक को आप याद रखिए कैसे आप करना है। सो e टू द पावर माइनस 3x, अच्छा बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव क्या है y1, y1 का डेरिवेटिव क्या है y2, एंड हियर 2y इंटू प्लस y1, and what is the derivative of e to the power minus 3x, minus 3 into e to the power minus 3x equal to what, 0। समझ में आ रहा है। now e to the power minus 3x, याद रखना e to the power anything, e to the power minus 3x or plus 3x, it is always greater than 0। so e to the power anything is always greater than 0। ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो आप e to the power 3x से डिवाइड कर सकते हो कि नहीं। जब डिवाइड करेंगे तो आप क्या होगा, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी और ये e टू द पावर माइनस 3x क्या होगा, ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज राइट हैंड साइड में क्या होगा 0 बाई e टू द पावर माइनस 3x इज इक्वल टू व्हाट 0। सो आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में e टू द पावर माइनस 3x से डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने के बाद 2y1 प्लस y2 प्लस 2y प्लस y1 इंटू माइनस 3 इक्वल टू व्हाट 0, ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, after that you see after that your equation becomes what, 2y1 plus y2 plus minus 3 minus 6y minus 3y1 equal to 0। so which equal to y2, 2y minus 3y minus y1 minus 6y equal to what, 0, or y2 means what, d2y upon dx2, y1 means what, dy by dx minus 6y equal to what, 0, which is the required differential equation। now ये क्या है, ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर क्या है 2 हो गया, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स 2। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन दिस प्रिमिटिव्स, जो कार्ब दिया जाएगा आपको, कार्ब जो दिया जाएगा फैमिली ऑफ कार्ब्स, वो फैमिली ऑफ कार्ब्स में अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हो, डिफरेंट कांस्टेंट हो, तो सेकंड ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। सो हाउ आई रिमूव दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट from the equation, it's very important। okay, so I hope you understand that is this type of equation actually we have already done in second order derivative। second order derivative में इस type का equation problem किया था हम लोगों ने, तो same procedure you have to follow here। okay, so formation में second order derivative जो है ऐसा ही क्या है। so I hope I have finished this particular chapter। I'll solve another 2-3 questions in the next class and I'll cover up for formation of differential equation। my most important concern is solution of differential equation, and solution is very important। okay, so I tried that I'll finish the syllabus as soon as possible because we are lagging behind। okay, we are lagging behind। so थोड़ा सा क्लास में फास्ट पढ़ाया मैंने, कोशिश करना समझने के लिए। सो व्हाट आर द डिस्कशन टुडे, डिस्कशन इज फर्स्ट व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, देन व्हाट इज सेकंड पार्ट, सेकंड क्या सेकंड में डिस्कशन किया दैट इज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द व्हाट, इट इज द
it is the it is the order of the highest derivative. And what is the degree of a differential equation? It is the power of the highest derivative present in the equation when the equation is that is freed from radicals and fraction. What are the radicals? जैसे रूट ओवर साइन हो, या जैसे साइन के अंदर dy by dx हो, और ऐसा हो सकता है अगर कोई भी इक्वेशन में ऐसा हो जाए कि आप e to the power dy by dx प्रेजेंट है, अगर ऐसा है सपोज e to the power y डैश अगर प्रेजेंट हो, तो ये भी एक रेडिकल साइन है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, तब जाके क्या होगा, रेडिकल साइन अगर रिमूव कर ले तो आपको क्या होगा, डिग्री मिल जाएगी। अगर रेडिकल साइन आप रिमूव नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। और ये रेडिकल साइन के जुड़ा हुआ चीज़ एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के साथ जुड़ा हुआ है। टेक्स्ट में जाइए, पढ़िए, समझ में आ जाएगा। और इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन कराया है डिफरेंशियल फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। और एक चीज़ में आप लोगों को कहा कि सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, दो चीज़ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, जैसे वन आर्बिट्री कांस्टेंट हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, वन होगा। आप एक बार डेरिवेटिव करेंगे और कांस्टेंट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। समटाइम कांस्टेंट डेरिवेटिव के साथ जीरो हो जाएगी, समटाइम्स कांस्टेंट रह जाएगा, उस कांस्टेंट का वैल्यू फिर ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन को निकाल सकते हैं। और दूसरा चीज़ है, सेकंड थिंग इज दैट इफ देयर आर टू आर्बिट्री कांस्टेंट व्हाट हैपन, that is your aim is to what, remove the constant, and if this is an exponential function or related, then there is a different approach of removing the constant। और क्या है आपका ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना हो तो दूसरा अप्रोच हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में और कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ व्हाट, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। होप दैट यू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास एंड गो थ्रू द पर्टिकुलर वीडियोज़ एंड गिव योर एफर्ट टू अंडरस्टैंड। आप अगर एफर्ट नहीं लगाएंगे तो ये क्लास बेकार होगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन गिव योर डाउट एट कमेंट बॉक्स, or you can give me a call, or you can send me in my WhatsApp number. I hope that you will understand. Okay, this chapter is very important. 8 marks will be there, scoring chapter, and maximum of the student attempting and they are getting marks. Okay, so with these words I conclude here. Thank you very much, all the best, and have a good day.